दूसरी बार अमेरिका का सदर बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दीगर वादों के साथ साथ यूक्रेन जंग खत्म करवाने का वादा भी किया था और अब उनके इस वादे पर यूक्रेन समेत उनके यूरोपीय इत्तेहादी परेशान हैं। सूरत हाल में सबसे ज्यादा खुश रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है, जो सदर ट्रंप के हाथों यूक्रेनी सदर की बेइज्जती और उस पर यूरोपीय रहनुमाओं की परेशानी को इत्मीनान की नज़र से देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया इकदाम ने उनके फितरी और तारीखी इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक को सख्त मुश्किल से दो चार कर दिया है और अब अमेरिका और यूरोप का तारीखी इत्तेहाद भी खतरे में पड़ गया है। अमेरिका और यूरोप के दरमियान तनाज़े की सबसे बड़ी वजह इस वक्त यूक्रेन की जंग बनी हुई है, जिसे ख़त्म कराने की कोशिशों में पहले फ्रांस और बरतानिया के सरबराह वाशिंगटन पहुंचे और फिर खुद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। लेकिन ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस पहुंचने पर जो कुछ हुआ वो व्हाइट हाउस की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिकी और यूक्रेनी सदर की मुलाकात झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई और मीडिया के सामने यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब सदर से तकरार होती रही। The United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way, so that's the way it goes. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to count one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? During the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to... You think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I answer? Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Say a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy, and I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave, but you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. You've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. All right. We'll see what we can do about putting it together. We'll see. I don't know. All right, guys, come on. Hey, come on. इस पूरी तकरार के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकलना पड़ गया और न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए, बल्कि ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस से चले जाने पर दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई। यूक्रेनी सदर को वापस भेजकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि हमने आज
व्हाइट हाउस में एक बहुत मायने खेज मुलाकात की और बहुत कुछ सीखा जो इस तरह की कशीदगी और दबाव में बातचीत के बगैर कभी नहीं समझा जा सकता था। यह हैरत अंगेज़ है कि जज्बात का नतीजा क्या निकलता है और मैंने ये समझ लिया है कि अगर अमेरिका दरमियान में आता है तो सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि हमारी शमूलियत से उन्हें मुज़ाकरात में बड़ा फ़ायदा होता है। मगर मैं फ़ायदा नहीं चाहता, मैं अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की बेइज्जती की। जब वो अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। फरवरी के आखिर में अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में नायाब मादनी ज़खायर से मुताल्लिक कहा था कि अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ अमेरिका की हिमायत बरकरार रखना चाहता है तो उसे चाहिए कि ये ज़खायर अमेरिका को दे दे। लेकिन इस पर यूक्रेन के सदर ने कहा था कि ये कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं है, मैं अपना मुल्क नहीं बेच सकता। इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी सदर के खिलाफ और रूसी सदर पुतिन के हक में बयानात दे रहे थे, जिस पर यूरोप में शदीद तशवीश और बेचैनी फैल रही थी। जबकि फरवरी में ही म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर शदीद तनकीद की थी। इसके बाद यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर से मुलाकात से पहले ही माहौल बेहतर करने के लिए फ्रांस के सदर मैक्रोन और बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें की। ताहम फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूरोप की जानिब से यूक्रेन को इमदाद के बजाय कर्ज देने की बात की, जिस पर फ्रांसीसी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया और अपनी बात की वजाहत की। मगर इस दौरान भी सदर ट्रंप मुंह बनाते रहे। Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total default, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us. Super. It will be loan at the end of the day, and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Mr. President, They get their money back, we don't, and now we do. But, you know, that's We only will fight fair. both. इसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की, उन्हें बरतानिया के शाह चार्ल्स का ख़त पेश किया और डोनाल्ड ट्रंप के सामने इंतहाई नरम रवैया अख्तियार करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सदर ट्रंप ने वही बात दोहराई कि यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को पैसे देकर अपना पैसा वापस ले लेते हैं, हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। इस पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी सदर ट्रंप को टोका और कहा कि इसमें सारा कर्ज नहीं, कुछ तोहफा भी है। Thank you for changing the conversation to bring about the possibility that now we can have a peace deal, and we want to work with you to make sure that peace deal is enduring, that it lasts, that it's a deal that goes down as a historic deal, that nobody breaches, and we'll work with you to make sure that that absolutely happens. And it is my pleasure to bring from His Majesty the King a letter. He sends his best wishes and his regards, of course, but he also asked me to bear this letter and bring it to you. So can I present the letter from the King? Thank you very much. We want to work with him, President Zelensky, she said before. We want to work with him, and we will work with him. I think the President and I actually have had a very good relationship. It maybe got a little bit testy because we wanted to have a little bit of what the European nations said. You know, they get their money back by giving money. We don't get the money back. Biden made a deal. He put in $350 billion. And I thought it was a very unfair situation. We're not getting all of ours. I mean, quite a bit of ours was gifted. It was given. और फिर इन दो मुलाकातों के बाद यूक्रेन के सदर का दौरा अमेरिका हुआ और ज़ेलेंस्की अमेरिका के साथ मादनियात का मुआहदा करने वाशिंगटन पहुंचे। लेकिन इस मुआहदे की नौबत आने से पहले ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान जो कुछ हुआ उससे ना सिर्फ मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गईं। व्हाइट हाउस से जाने के बाद यूक्रेनी सदर ने ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि आज व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊँगा। ताहम 1 मार्च को उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम तमाम सपोर्ट के लिए अमेरिका के बहुत मशकूर हैं। मैं सदर ट्रंप, कांग्रेस की हिमायत और अमेरिकी अवाम का शुक्रगुजार हूँ। यूक्रेन के शहरियों ने हमेशा इस हिमायत को सराहा है, ख़ासतौर पर जंग के 3 सालों में अमेरिका की मदद बहुत अहम रही है और मैं इसे तस्लीम करना चाहता हूँ। सख्त बातचीत के बावजूद हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। सदर ट्रंप की हिमायत हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो जंग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा कोई अमन नहीं चाहता। हम मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं और ये हिफाजती ज़मानतों की जानिब पहला कदम होगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें
इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। सिक्योरिटी ज़मानतों के बगैर जंग बंदी यूक्रेन के लिए ख़तरनाक है। हम 3 साल से लड़ रहे हैं और यूक्रेन के लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि अमेरिका हमारे साथ है। हम चाहते हैं, इसलिए मैं अमेरिका आया और सदर ट्रंप से मुलाकात की। मादनियात पर डील, सिक्योरिटी की ज़मानतों और हम की तरफ सिर्फ एक पहला कदम है। हमारी सूरत हाल बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इस तरह लड़ाई नहीं रोक सकते और इस बात की ज़मानत नहीं दे सकते कि पुतिन कल वापस नहीं आएगा। इसके बाद बरतानिया, जर्मनी, इटली और कनाडा समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने ज़ेलेंस्की से इज़हार यकजहती किया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉर्मर ने सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ज़ेलेंस्की को बरतानिया की हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार करने की पेशकश की, जबकि कनाडा ने कहा कि यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, हम यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर तकरीबन 30 यूरोपीय रहनुमाओं का फ़र्दन शुक्रिया अदा किया और इसके बाद अमेरिका से ज़ेलेंस्की सीधे बरतानिया पहुँचे, जहाँ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने गर्मजोशी से गले लगाकर उन्हें खुशामदीद कहा, जबकि ज़ेलेंस्की की लंदन आमद पर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर बड़ी तादाद में लोगों ने भी उनका इस्तकबाल किया। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया यूक्रेन के साथ है और जितना वक्त भी लगे यूक्रेन की हिमायत जारी रहेगी। दोनों ममालिक के दरमियान $2.8 अरब के कर्ज का मुआहदा तय पा गया, जिसके हवाले से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के बाद कहा कि यह कर्ज यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं नेटो में यूक्रेन की शमूलियत के बदले मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ, इससे मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें यूक्रेनी सदर ने शिरकत की। इस सरबराही इजलास में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने यूक्रेन की हिमायत पर इत्तफाक किया और दिफा पर ज़्यादा खर्च करने और यूक्रेन में जंग बंद कराने का अज़म भी जाहिर किया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय ममालिक की एक कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाने का भी ऐलान किया और सहाफ़ियों को बताया कि वह फ्रांस और दीगर ममालिक के साथ मिलकर जंग को रोकने के लिए एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं, जिसे फिर अमेरिका को पेश किया जाएगा। लंदन में होने वाली इस अहम सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद यूक्रेनी सदर की बरतानवी शाह चार्ल्स से खुसूसी मुलाकात भी हुई है, जबकि इजलास के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने यह तजवीज़ दी है कि अमेरिका की तरजीहात में तब्दीली के बाद यूरोपीय ममालिक को अपने दिफाई अखराजात को बढ़ाना चाहिए और इस पर GDP का 3 से 3.5% तक खर्च करना चाहिए। रूस ने 3 साल तक अपने GDP का 10% दिफा पर खर्च किया, इसलिए हमको भी आने वाले वक्त के लिए तैयार होना चाहिए। मैक्रोन ने मजीद कहा कि फ्रांस और बरतानिया ने यूक्रेन में 1 माह तक महदूद जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है। इस मुतबादिल अमन मुआहदे के इब्तिदाई मरहले में 1 माह की जंगबंदी शामिल होगी। दूसरे मरहले में ज़मीन पर फ़ौजें भेजी जाएंगी। इस पूरी सूरत हाल में रूस खुश दिखाई दे रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान तो सामने नहीं आया है, ताहम रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने टेलीग्राम पर लिखा कि ट्रंप और JD वेंस ने इस बदमाश को मारने से खुद को कैसे रोका, ये तहम्मुल का एक मौजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में यूक्रेनी हुकूमत अकेली थी। इसके अलावा रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ज़ोरदार थप्पड़ लगा। ये बहुत मुफीद है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है।